Good afternoon, viewers. I am Gagan Nagpal from Shri Balaji Action Medical Institute. Viewers, I am back for you, and today we are going to discuss another very critical topic and very crucial topic. And viewers, today we will be going to discuss on the aspects of the sleep. Why sleep? Tomorrow is a World Sleep Day, that is 19th, and today with me a very renowned and very leading chest physician, Dr. Animesh Arya. He is expert in the sleep medicine and he's himself is an institution on this subject. Welcome, Dr. Welcome, Dr. Animesh Arya. And we will be discussing with him in many questions which you want to ask on the sleep. Sleep is sleep is not only just a one habit. It could be a disorder also. It is not a regular thing, but if it gets irregular, then we will be having many problems. So let's welcome Dr. Animesh Arya, and we are going to discuss with sir about this sleep. Sir, welcome to our this show, sir. Thank you, Gagan, and a warm welcome to all the viewers and listeners from my side and Shri Balaji Action Medical Institute. And it's a wonderful day and very opportune to talk about topic or less understood science, which has become really a science in the last 20 years. That is the sleep science of sleep. Although we knew for a long period of time, as Mr. Gagan said, sleep is not merely a habit. It is in itself a process या वो एक प्रतिक्रिया है हमारे बॉडी की which helps us in recovering the various onslaughts or difficulties or the disturbances which we go throughout our day. So what is sleep? Sleep is not merely a habit that we go to the bed and just close our eyes and shut ourselves off, or the body shuts itself off, but sleep is not a passive process. मतलब वो शांत एक स्थिति नहीं है जैसे कोई हम शवासन कर रहे हैं जिसमें हम नींद में चले गए हैं, but it is an active process. Our mind is working, the body is overworking. बॉडी के जो वेरियस फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, वेरियस हार्मोन्स हैं, वो सारे के सारे they are working maybe double or 3 times. You may be surprised to learn that if we did not have sleep, then we will not restore the tired body systems. We will not be able to repair our systems which have become attrition और जिनमें हमारी थोड़ी सी कह सकते हैं कि जो लिटरली हिंदी की लैंग्वेज थकावट आ गई है या वो सुस्त हो गए हैं, तो वो रिपेयर नहीं होंगे और इसलिए हमें एक बॉडी फंक्शन या कार्य प्रणाली हमारे बॉडी की रिस्टोर नहीं होगी. सो इट इज नॉट मियरली एन हैबिट, बट इट इज ए full body system or a factory by itself that sleep gives us a restart the next day morning if we sleep well. What is a good sleep? सर हमसे यही सर जानने के लिए सर कई व्यूअर्स भी जुड़ गए हैं. So to move on to और सर उनके कई क्वेश्चंस हमें आने शुरू हो गए हैं सर. और पहले तो सर हमें आप ये बताएं कि सर हम सोते क्यों हैं सर. हाँ, तो हमने इसको पार्टली डिस्कस कर लिया है कि हम क्यों सोते हैं. जो हमारा बॉडीली फंक्शन दिन भर थक जाता है, हमारे सिस्टम्स जैसे कि हार्ट का सिस्टम है, सांस का है, हम इतनी अपनी ब्रेन से एक तरह से फाइट करते हैं सोचने में, बोलने में, और बार बार उसको एक्टिवेट करते हैं कि क्या आगे नेक्स्ट करें प्लानिंग में. तो हमारे ब्रेन सेल्स आर कॉन्स्टेंटली एक्टिव. So also our
लोकोमोटर सिस्टम और मूवमेंट सिस्टम, हैंड्स हैं, फीट हैं, हमारा गैस्ट्रिक सिस्टम है, हम खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ पानी पीते हैं, लिक्विड्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, खाना खाते हैं, उसको डाइजेशन। तो ये सारी चीजें एक रेस्ट मांगती हैं। जैसे हमें पता है कि गाड़ी को हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला सकते, ठीक है, तो day to day habit and a part of life, and so much so that we nearly sleep right from birth to the adulthood. We nearly sleep about 1/3 to 2/3 of our lifespan. तो अगर हम सालों में गिने और उसको कन्वर्ट करें प्रतिदिन के घंटों की या मिनट की स्लीप को, तो हम किसी भी एक एवरेज लाइफ के व्यक्ति जिसका 75 से 80 साल का लाइफ स्पैन होगा, तो हम लगभग आप समझें कि कोई 25 से 26 साल हमने सोने में गुजारे होंगे। तो सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि यार तुमने सारी उम्र तो शायद सोने में गुजार दी, तो काम क्या किया? नहीं, that is what necessary and that is absolutely essential. So don't be taken aback by figures which come into mind, but we must realize the thing benefits behind it. उसके नीचे क्या तथ्य है उसको हमें जानना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेकिन क्या सर ये सोने के लिए भी सर कोई सिचुएशंस होती हैं कि सर जो कि हमारे दिन रोज की हमारी एक्टिविटीज को अफेक्ट करती हैं कि कैसी नींद होनी चाहिए, क्या नींद की क्या सिचुएशंस होनी चाहिए कि जो हमारी रोज नींद आने की प्रक्रिया है, नींद आने का जो हमारा तरीका है, उसको क्या अफेक्ट भी करती हैं सर? क्या डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट तो एज है कि जैसे बच्चे जो हैं वो लगभग 12 से 14 घंटे सोते हैं, न्यूबॉर्न नवजात शिशु। धीरे धीरे वो ट्रांजिशन 1 साल के अंदर आ जाता है कि बच्चों का सोना कम हो जाता है, जैसे जैसे माइंड की डेवलपमेंट होती है, इंक्विजिटिवनेस बढ़ती है, फिर उसके बाद कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज आती हैं, और ये सारी की सारी एसिमुलेट या दे एक्यूमुलेट इन द माइंड in form of various signals, जो कि signal processing like a computer keeps on happening in our hard disk of the brain. The mind is functioning and that is a repetitive process. तो उसी लिए उसको हम शांत वातावरण में एक नींद की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले एज है, एक सिचुएशन है, या आपकी यूजुअल प्लेस या फेमिलियर प्लेस है जहां पे आप सोएंगे। हाँ, अगर आप बहुत ही ज्यादा थके हुए हो तो जैसा आपने देखा होगा कि भाई आप रात को सिनेमा देखने जाते हैं, इफ यू गो फॉर ए मूवी यू विल फाइंड मेनी पीपल आर स्नोरिंग एंड दे आर इन डीप स्लीप, so because the time was due and they just had to sleep, so the place does not matter. Or normally we are waiting for a bus or a railway or even aeroplane, we tend to sleep because the time is there, though the place is odd, but mind and body is asking us to sleep, so we sleep. So age ho gaya, the place where we are comfortable and the surroundings of the place. So normally सभी व्यक्ति कहते हैं यार मैं तो अपने घर जाके ही अच्छा सो सकूंगा, फ्रेंड के घर पे भी नहीं सो पाऊंगा, और मैं ट्रैवल करता हूँ, आई स्टे इन द होटल्स, मेरे को नींद ही नहीं आती, रात रात में जगता रहता हूँ, एंड भाई get back home I hit the bed. The age, the place, the surrounding, what you have done in the day, how much you are affected by it during the sleep, how much your mind is still active to calculate that, and what you want to achieve the next day, whether you are in a holiday. So all these things affect the sleep. But in addition to these normal things, there may be more things, particularly healthy situations or disease situation. क्या हमारे बीमारी से ग्रस्त हैं या हम कोई दवाई ले रहे हैं, और उन दवाइयों का हमारे माइंड पे क्या असर है, हमारे बॉडी पे क्या असर है, उसको कितना वो स्टन या सुन करती है, कितना एक्टिवेट रखती है, कितने मसल्स को रिलैक्स करती है। तो ये सारी परिस्थितियां और द सिचुएशंस विल अफेक्ट द ड्यूरेशन, द क्वालिटी एंड द रेस्टोरेटिव स्लीप
and how fresh do we get up in the morning with a big smile. Okay, I have had a good night's sleep. So this is how we take sleep as a very, very important factor in our lifestyle. सर तो इसका मतलब सर जो हम पहले सुनते थे घोड़े बेचकर सोना, सो दैट थिंग इज रियली गुड फॉर द स्लीप. इट मीन्स कि अगर आप ज्यादा अच्छे से ज्यादा गहरी नींद सोते हैं तो आपको आपकी इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, या ये चीजें भी सर उम्र के साथ संबंधित होती हैं? That's right. Very good question, Gagan, because सभी लोगों का ये अनुमान है कि जो खराटे लेता है या खूब एकदम गहरी नींद सोता है, और इसमें यही एक कॉमन वाक्य यूज किया जाता है, मुहावरा, भैया तो घोड़े बेच के सो रहा है, तो ये बहुत ही तल्लीन और रिलैक्स नींद में सो रहा होगा. हाँ, ये मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट है, पर फिर भी एक व्यक्ति 3 में से, मतलब 1 out of 3 people who sleep like this, as we say, sleep like a log, or with snoring, or with loud noises or body movements, are usually not having a good sleep, because वो physiologically एक unhealthy या पैथोलॉजिकल या बीमारी की अवस्था की स्लीप है, क्योंकि इस तरह की नींद की साथ, या ये नींद पर्यायवाची है काफी अंदरूनी बीमारियों के या बीमारियों के लक्षण की उपज के, और दे आर हार्बिंगर ऑफ न्यू डिजीजेस विच वी आर अनअवेयर ऑफ, जिनका हमें अनुमान या इमीडिएटली पता नहीं होगा, और विद टाइम अगर इसका करेक्शन नहीं किया जाए तो वाकई में वो काफी इंपॉर्टेंट डिजीजेस में तब्दील हो सकती है. और इस सिचुएशन को नॉर्मली हम स्लीप एपनिया कहते हैं. और उस स्लीप एपनिया से, जो कि सारे के सारे बॉडी सिस्टम को एक तरह से झंझोड़ के हिला के रख सकता है, जिसमें कि हार्ट डिजीजेस, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ब्रेन फंक्शन मैल फंक्शन करना, इरिटेबिलिटी, रात को बार बार उठना, स्ट्रोक्स हो जाना, बॉडी के हार्ट की रिदम बदल जाना, मोटापा आ जाना, शुगर बिगड़ जाना, कैंसर्स की प्रवृत्ति शुरू हो जाना. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका विवरण करने लगे तो शायद हम 200 का आंकड़ा पार कर जाएंगे. इट हैज बीन फाउंड टू बी रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ ए स्लीप पैटर्न, जिसको हम घोड़े बेच के सोना कहते हैं. तो वी शुड बी अवेयर. सो हमारे व्यूअर्स के लिए एक तरह से रेड फ्लैग वार्निंग है कि अपने फ्रेंड्स में, अपने घर में कोई बहुत ज्यादा इस तरह की आवाजें निकाल के सोता है, स्नोर करता है, या ट्रेन में या किसी होटल में साथ में सो रहे हैं, तो तुरंत वो उसकी एक कहीं ना कहीं डॉक्टरी जांच कराएं और जाने कि वो सामान्य स्थिति है, इज इट अ नॉर्मल पैटर्न ऑफ स्लीप, और इज ग्रेजुअली फॉलिंग इनटू ए vicious cycle of bad sleep, sleep apnea and sleep disorder. सर ये तो आपने बहुत बड़ी चीज हमें बताई कि नींद जो है कई बीमारियों की चाबी है, पूंजी है. तो इसलिए व्यूअर्स, आपने नींद को जो है नहीं आने की स्थिति को लाइटली नहीं लेना. ये गंभीर समस्या हो सकती है जिसके बारे में सर हमें बता रहे हैं. लेकिन सर इसका मतलब ये हुआ कि सर नींद से हमारी कुछ बीमारियां भी संबंधित है. नींद ना आने से क्या कुछ बीमारियां, ऐसी बीमारियां आ जाती हैं, इसका ये मतलब हुआ? और या कुछ बीमारियों की वजह से नींद नहीं आती सर? हाँ, दोनों बिल्कुल सही सोचा आपने. दोनों तरफ इससे टू डायरेक्शनल करंट और टू डायरेक्शनल वे. सो स्लीप डिसऑर्डर इन इट तक 100 तरह के वेरियस स्लीप का प्रचलन का अनुमान है, और वी अंडरस्टैंड अबाउट 100 स्लीप डिसऑर्डर्स. उसमें से 6 या 7 काफी प्रमुख हैं. इसमें सबसे पहले होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें सांस रुक जाती है खराटे लेते हुए. लोग सांस, ऐसे आता है, लोगों ने सुना होगा आपने कहते हुए, कि सांस छोड़ देते हैं या सांस लेना बंद कर देते हैं, और पार्टनर या साथ में सोने वाला व्यक्ति उसको हिलाता है, अरे भाई उठो, क्या हो गया. उसको लगता है कि ये व्यक्ति ने तो सांस लेना बंद कर दिया, पता नहीं ये जीवित है या नहीं है, और वो काफी घबरा भी जाता है, और तुरंत इस तरह से वो अगले दिन पेशेंट को लेके या व्यक्ति को लेके हमारे पास आते हैं. एक होता है हाइपर सोमनलेसेंस सिंड्रोम, जिसमें कि पेशेंट ज्यादा देर तक सो जाता है और दिन में भी सोता रहता है, जिसको कि नार्कोलेप्सी कहते हैं.
एक सबसे कॉमन है कि इंसोम्निया या नींद ना आना, शुरू में नहीं आना या नींद से उठ जाना, या लेट ऑनसेट आना और फिर देर तक सोते रहना, या फिर होता है हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, जिसमें कि नींद धीरे धीरे आदमी की जो व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है वो काफी स्लो हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि आदमी तो ये क्या कर रहा है, इतना बड़ी शरीर है और सो नहीं रहा है, सोने में दिक्कत आ रही है। या फिर होते हैं स्लीप मूवमेंट डिसऑर्डर, कि लोग स्लीप में चलना शुरू कर देते हैं। आपने सुना होगा कि बच्चे स्लीप में चलने लग जाते हैं, इधर से उधर पहुंच जाते हैं, स्कूल में, हॉस्टल में, घर से बाहर निकल जाते हैं, तो उसको स्लीप वॉकिंग कहते हैं। या स्लीप में बड़बड़ाना कहते हैं। कुछ लोग मूवमेंट्स करते हैं, कुछ लोग पैर पटकते हैं, या स्लीप में किसी किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा भी आ जाता है, जिसको स्लीप एपिलेप्सी कहते हैं। तो ना अकेली नींद पर उससे जुड़े हुए ये सारी बीमारियां हैं। उसमें ये 6 या 7 जो प्रमुख हैं, जो काफी कॉमन हैं और जिनका हमें काफी देर बाद पता चलता है कि ये तकलीफ है। जब काफी सारी चीजें रूल आउट हो जाती हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे पेशेंट जब इस तरह के इंटरव्यू में बैठता है, जो कि नॉर्मली आधे से पौन घंटे के बाद ही हमें पता चल पाता है ये डिसऑर्डर्स है। पर काफी बीमारियां जो हैं वो भी स्लीप डिस्टर्ब करती है, जैसे कि पेनफुल सिंड्रोम्स, क्रॉनिक पेनफुल सिंड्रोम, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, या हमारे लेग्स में पेन है जो डायबिटीज में होती है। तो उससे लोग पैर पटकते रहते हैं, पैर लटका देते हैं, ठंडे जमीन पे रखना चाहते हैं, बार बार उठ के टहलने लगते हैं। तो पेनफुल न्यूरोपैथी ड्यू टू नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी नींद पूरी नहीं आएगी। या गदूद का बढ़ जाना, उसमें भी बार बार नींद खुल जाती है। काफी इन्फेक्शन जिसमें बार बार यूरिन आती है, या खांसी होती है, बलगम आती है, सांस फूलता है। तो इसमें रिलेटेड सबसे ज्यादा है दमे की बीमारी, सीओपीडी, या जो स्मोकर्स होते हैं उनमें खांसी भी होती रहती है, उनको बार बार स्पिट करना पड़ता है, तो उनको बार बार उठना पड़ता है। सिमिलरली कुछ ड्रीम्स या बैड ड्रीम्स वाली सिचुएशन होती है, जिसमें आदमी चौंक के उठ के बैठ जाता है। कुछ सिचुएशंस होती है जिसको डिप्रेशन से रिलेटेड होती है, तो आदमी एकदम पसीना आके एकदम उठ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। या पेशेंट का रिदम इरेगुलर हो जाए, बार बार एंजाइना पेन हो, या पेट में दर्द हो, तो सभी चीजें जो बीमार अवस्था है वो स्लीप अफेक्ट करती है। और सबसे ज्यादा इसका ये देखा गया है कि हॉस्पिटल में, जैसे हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो हर एक दिन हम सुबह राउंड पे पेशेंट से पूछते हैं कि भाई क्या आपको नींद आई। वो बड़ा बेचारा हिचकिचा के एक आंसर देता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल के सिस्टम को ब्लेम नहीं करना चाहता। पर इनवेरिएबली कोई वैसे ही उसका हालचाल पूछने आ रहा है, चाहे वो सगा संबंधी है, दरवाजा बार बार खुल रहा है। अब वो रात को आया है 8:30 बजे 9 बजे, तो चाहेगा कि भाई मरीज की हालत पूछ के जाए। सुबह 4 बजे से सफाई शुरू हो जाती है, कुछ ब्लड सैंपल लिया जाता है, कुछ अखबार चाय देने वाला 6 बजे आ जाता है। तो सारी चीजें खटर पटर, वातावरण, बाहर की एम्बियंट नॉइज, एक नई जगह, बीमारी की परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति कि मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, तो हॉस्पिटल अफेक्ट्स द स्लीप अ लॉट, और ए न्यू प्लेस। तो एक चीज जस्ट ऐड करना चाहूंगा, क्वेश्चन से रिलेटेड है या नहीं है, तो हम इन सब चीजों से वी आर इन, जिसको हम कहते हैं कि हमारे तरफ बहुत ज्यादा ऋण बाकी है कि हम सोएं। और इट इज सेड अबाउट मोर देन हाफ ऑफ अमेरिका, and maybe similarly in cities or metropolis situations, cities in India, more than 1/3 people are sleep। एक क्यूमुलेटिव डेप्थ होता है, जैसे आपने देखा होगा एफडी, आप कहते हो कि क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट में लगाते हैं, तो इसी तरह से आप अगर नेगेटिव क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट देखें तो वो एक्सपोनेंशियल या उसके रेस टू द पावर 1 या 2 हो जाता है। कि आज आप 15 मिनट नहीं सोए तो कल शायद 20 मिनट नहीं सोएंगे, और इस तरह से रोज सोते नहीं हैं, तो वो सिर्फ ऐड नहीं होता है,
करती हैं तो रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3, तो वो क्यूबॉइड या क्वाड्रुपल इस तरह से मल्टीप्लाई करता है। तो स्लीप डेप्थ इज अ वेरी बैड थिंग which accumulates, starts accumulating adulthood or adolescent period and continues till age, and that is why our parents or grandparents are so difficult to make them sleep. Yes. कि वो सुबह 4 बजे उठ के कहीं ना कहीं कोई चाय बनाने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, नहाने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर हमसे सर मिसेस मीनाक्षी हैं जो सर पूछ रही हैं कि सर उनकी बेटी जो है वो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में है और वो रात को 3-3 बजे तक पढ़ती है, रहती है, सोती नहीं है। तो मैं उसे ये भी नहीं बोल पाती हूँ कि सो जा, लेकिन क्या इसका मतलब कि वो उसकी आगे की हेल्थ को सर अफेक्ट करेगा? या सो डेफिनेटली मीनाक्षी जी, एक तो हम अपने शरीर की नॉर्मल जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसके बारे में मैं जस्ट बता दूं कि जब हम जागते हैं तो दिन निकलने वाला होता है या सूरज आने वाला होता है, और जब हम सोते हैं तो रात होने वाली होती है, चांद निकलने वाला होता है। तो ये हमारे बॉडी के जो नींद के केमिकल्स हैं जो नींद लाने वाले, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं 6-7 बजे तक, और उठाने वाले हमारे सुबह 3 से 4 बजे तक। तो ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम या एक बॉडी रिदम कहते हैं। और अगर हम किसी भी रूप में बॉडी रिदम को डिस्टर्ब करते हैं, चाहे एक दिन के लिए चाहे सक्सेसिवली, तो वो हमें बैकलिश करती है, बैकफायर करती है। तो आप कभी अपने खुद को याद करिए सिचुएशन कि अगर एक आप लेट नाइट पार्टी में गए हो, या एक लेट नाइट शादी में गए हो, या अपने घर की शादी हो जहाँ को फेरों में बैठना पड़ गया हो, और सुबह आप नींद में डोल रहे हैं, फिर भी आपको जागना पड़ रहा है, सिचुएशन ऐसी है, 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, 5 बजे डोली उठी है, बड़ी मुश्किल से आप आके सोए हैं, तो अगले दिन उठे तो आपको लगता है यार पता नहीं क्या हो गया, किसी ने ऐसा लगता है कि शरीर को पीट लिया है, लिटरली डंडे मारे, और आपकी वो थकान वो पूरे दिन तक नहीं उतरती है, और फिर आप जल्दी से सोना चाहते हो चुपके से, या 2 घंटे की नींद मिल जाए, आधे घंटे की नींद मिल जाए जिससे मैं रिकवर कर जाऊं। तो मैंने आपको कहा था शुरू में कि हमें रिपेरेटिव एंड रेस्टोरेटिव फंक्शन देती है स्लीप। तो अगर ये दर बदर हर दिन आपकी बेटी इस तरह करती रही तो एक रिपेयर एंड रेस्टोरेटिव फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप अपनी स्टडीज में कामयाब हो जाएंगे, पर कहीं ना कहीं बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे, हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेंगे, तो मेंटली कुछ डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, फिजिकली हमारी बॉडी थकी रह सकती है, बॉडी वेट बहुत बड़ी डायबिटीज सकती है एट यंग एज। सो वी मस्ट फॉलो सर्केडियन रिदम। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट में या जो शिफ्ट वर्कर्स हैं, तो उसमें एक शिफ्ट हमेशा नहीं चलती, सारी उम्र आप सिर्फ 8 से 2 की या रात की 4 से 12 की सुबह 8 बजे की शिफ्ट नहीं ले सकते। तो आफ्टर मे बी 1 वीक यू गेट बैक टू सेकेंड शिफ्ट, then you get back to third shift, then you get to a normal working hours, and then you realign your shift. So that is very important. तो रात का वक्त जो है वो गलत है। कोविड टाइम्स में ये काफी डिफिकल्ट टाइम रहा है, वर्क फ्रॉम होम रहा है, लोग जो इंटरनेशनल काम करते हैं उनके लिए तो काफी चैलेंजिंग रहता है, पर वो अपना एक अडॉप्टेशन है, और वो एक गलत अडॉप्टेशन है, यही मैं कह सकता हूँ। सर आपने हमें इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है आज नींद के लिए कि इससे क्या-क्या बीमारियां कितनी घातक रूप ले सकती हैं और आपके शरीर को कितना अफेक्ट डाल सकती हैं। लेकिन सर इस स्लीप डिसऑर्डर को क्या हम देयर इज एनी मेजर टू ट्रीट इट, करेक्ट इट? जो क्या शब्द है सर, इसको करेक्ट करना इज द शब्द या ट्रीट करना? तो सर हम वो भी जानना चाहेंगे कि इस डिसऑर्डर को हम कैसे ऑर्डर में ला सकते हैं सर? Yeah, great. So how can this order be converted into an orderly health? Very important, very well said, Gangadi. And sleep disorders को primarily diagnose किया जाता है with an interview और maintaining a sleep diary with the person, कि उसकी habits क्या है, कितने बजे सोते हैं, क्या उनके personal experiences हैं during sleep hours, और दिन के समय क्या चीजें हैं, वो कितनी कैफीन या चाय का कंजम्पशन करते हैं, कितना मेंटली चैलेंज है, कितना प्रेशर ऑफ वर्क है। तो मोटा मोटा आवर्स ऑफ स्लीप, फ्रीक्वेंट अवेकनिंग,
गेटिंग अप विद हेडेक और हैवी हेड, दिन के समय नींद आना, और उससे कोई बीमारियां उनको लग रहा है, किसी ने सस्पेक्ट किया है, ये हो जाना। तो ये सब जब हम एक क्वेश्चनियर्स है इसमें, जो आप नेट पे भी ढूंढ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एफवर्थ स्लीपीनेस स्केल, एक है स्टॉप बैंक क्वेश्चनियर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक है बर्लिन क्वेश्चनियर। तो अगर ये भरे तो उसमें एक स्लीप डिसऑर्डर होने का अंदेशा who can guide us through the process of and then performing certain tests. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्लीप टेस्ट, जिसको हम वेरियस लेवल्स पे करते हैं 1 to 4, जिसमें कि सबसे पहले होता है फुल पॉलीसोमनोग्राफी, जिसमें 16 से 18 पैरामीटर्स रात के समय 8 घंटे रिकॉर्डिंग करते हैं। उसमें ब्रेन के पल्सेस की रिकॉर्डिंग, नाक के फ्लो, खराटा और हार्ट की रिदम, मुंह से हवा जाना, ऑक्सीजन, ईसीजी, पैरों की मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, ये सब रिकॉर्ड होता है, जिसको अगले दिन हम लोग बैठ के अपने स्लीप टेक्नोलॉजीज के साथ एक एनालाइज करते हैं और एक कंक्लूजन निकालते हैं कि आपको स्लीप डिसऑर्डर है, किस तरह का है, और उसका क्या निदान किया जा सकता है। तो प्राइमरीली जो है उनको तो यही है कि स्लीप हाइजीन या किस तरह के तरीके अपनाएं एक कंफर्टेबल और इफेक्टिव और हेल्दी स्लीप के लिए। रात को सही समय पे, सेम समय पे सोएं, सेम वातावरण में सोएं, लाइट जला के नहीं सोएं, टीवी नहीं देखें, दिन में पानी खूब पिए, शाम को 6 या 7 बजे या खाने के बाद पानी ज्यादा नहीं पिए, नहीं तो यूरिन आने की संभावना है। जो भी दवाइयां लेनी है वो समय अनुसार लें, और एक किताब सी पढ़ें, लाइट किताब पढ़ें और रिलैक्सेशन है। और ये, और काफी हमारे जो इस तरह से पेशेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, दे आर क्वाइट एक्टिव इन परफॉर्मिंग दिस। और आजकल तो आपके एंड्रॉइड पे, फोन पे, गूगल प्ले स्टोर से काफी एप्स उपलब्ध हैं, जिसमें कि आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि कुछ तरंगों का म्यूजिक है, कुछ इस तरह के एपिसोडिक श्लोक्स हैं, जिससे कि एक रिलैक्सेशन होता है, तो विच यू कैन फॉल, मेक यू फॉल अस्लीप। सो ये सब किया जा सकता है। तो फर्स्ट इज सस्पिशन, एंड देन कंसल्टेशन, filling up a questionnaire, and then objective tests of sleep disorder like polysomnography, apnea link, nighttime oximetry, and then appropriate measures for treatment by simple measures like sleep hygiene practice, जिसमें कि एक सेट प्रिंसिपल्स हम लिख के भी देते हैं, टाइप करके भी देते हैं, प्रिंट आउट भी देते हैं, how to modify your sleep behavior, and of course treatment of sleep apnea by a separate thing called machine, which is CPAP machine. नहीं सर, थैंक यू सर, आपने हमें इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। इसका मतलब सर ये है कि डिसिप्लिन मेक्स यू ए हेल्दी स्लीप एंड डिसिप्लिन कीप यू healthy as well. Am I correct, sir? This is a matter of discipline. If you become if you will start ignoring the discipline things, so you will land up into the trouble. Yes, that is right. So sleep hygiene or sleep discipline is very, very important. At least follow 80% of time, if not, because हम सोशल भी हैं, सोशल एनिमल हैं, हमारी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम एकदम 100% उसको इन्फोर्स नहीं ला सकते, वो भी हमारे लिए मेंटली चैलेंजिंग हो जाएगा। हम उस तरह से सोचे लगेंगे और नहीं कर पाए तो उसमें भी एक मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाएगा कि हमारा वर्क रिलेटेड परफॉर्मेंस फॉल करेगा, बॉसेस को क्या जवाब देंगे, फैमिली को क्या जवाब देंगे। तो एक बैलेंस, एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है जिसको तोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी फैमिली के साथ मिलके उसको अचीव करना है, एक्सप्लेन करके और इन सिंपल टर्म्स कि भाई स्लीप भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, नींद भी इम्पॉर्टेंट है, सब जानते हैं पर शायद उसके बारे में गौर नहीं करते हैं। जब तकलीफ आ जाती है तब गौर करते हैं, तो शायद लेट हो जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं। Yes. और सब लोग कहते हैं भाई हमने तो सोचा ही नहीं था कि खराटे आना या इस तरह से घोड़े बेच के सोना और रात को गहरी नींद आना और हिलना डुलना या रात में चलना, ये भी एक बीमारी का लक्षण हो सकता है।
तो ये तो काफी अच्छी बात है. So the more knowledge we spread, more awareness we create through the media, through personal talks, through personal experiences, through this kind of talks with the effort of our friend Gaganji and other people, through our hospital, through our clinics, road shows, we will spread a very positive message and improve the quality and the content of sleep of our people, make it more widespread with healthier nation and healthier family, healthier people around us, more responsive, more responsible and happy people, I will say. So as I said, if you sleep well, and usually you should get up with a smile, और एक बहुत ही, जब हम लोग उठते हैं तो इनवेरिएबली सब लोग एक अच्छी अंगड़ाई लेते हैं. वो सुबह सुबह अपने साथ में और अपने मन को एक अनुभूति दे, एक एहसास दे कि हाँ, हमारी नींद वाकई में बहुत अच्छी थी, हमने उसको एंजॉय किया और हम फ्रेश उठे और आगे हमें कोई तकलीफ नहीं हो. And that is the sign of the healthy body. Healthy sleep is certainly the sign of a healthy body. That's right. Thank you, sir. We have taken you a lot of time, and we have taken this message from you that keep yourself into your order. आज जब सर मॉर्निंग में आपसे डिस्कशन कर रहा था, तो सर ने मुझे एक चीज बताई. उन्होंने बताया नियम यम को दूर करता है. तो व्यूअर्स, अपनी नींद के लिए नियम बनाएं और इसको लाइटली नहीं लें. अगर आपको नींद नहीं आ रही है, sir is available every day in Shri Balaji Action Medical Institute, and you can always come and discuss with him about this problem, and do not shy it. आप शर्माए नहीं इस प्रॉब्लम को डिस्कशन करने के लिए, और आप सर से मिल सकते हैं every day except Sunday in Shri Balaji Action Medical Institute, and we wish you a very happy and sound sleep ahead, and happy Holi too. Sir, thanks a lot, but we will not leave you, sir. We will certainly keep you engaging with us for our another few informations on the sleep disorder or the chest disorder in which you are as an institution for us. Thank you so much, Gagan, and thank you, everybody. Thank you, viewers, for listening to this. And once again, spread the message of good sleep, and you will never regret. Thank you. Thank you, viewers, and see you again with some other topic. Thanks. Leave